So Adit, today we are going to find the expressions of energy of electrons, right? Previous class इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है linear velocity in Bohr's orbit as well as we have checked the radius of the orbit. वो सारे expressions किया, we have done the problems related to radius and velocity. Today we are going to derive the expression of energy. So is there any noise from your side? It might be the thunder. Okay, yeah, I could hear that. Anyway, so let us start with this energy expressions. What is EK, EP and E means? This is kinetic energy, this is potential energy of electron, this is the total energy. Right, so electron has two types of energy available. One is the energy due to its position called potential energy, and that one is the energy due to its motion, which is kinetic energy. And the summation of these two will be the total energy of the electron in Bohr's orbit. Right, so let us derive these Yes. expressions. So do you remember the force balancing expression? Right. The one with centripetal force, right? Right. So force, this is the force balancing election where the centrifugal force is equal to the magnitude of centrifugal force and electrostatic force same hota hai. And these are the expressions. This is electrostatic Yes. force of attraction between nucleus and electron, and this is the centrifugal force. I think I have already defined all these terms, right? Yes, M sir. is the mass of electron, V is the linear velocity of electron, right? Yes, sir. Let's say this is the Bohr's orbit. So this must be the linear velocity along the tangent, right? The mass of electron is m, r is the radius of the orbit, z is the atomic number of the atom or the element. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब there are z number of protons present in the nucleus and हर एक प्रोटॉन का चार्ज क्या है? 1 unit charge which is e, right? तो ये न्यूक्लियस का टोटल चार्ज क्या हुआ? Q1 is equal to plus ZE, and electron का charge is 1 unit charge but negatively charged, so Q2 is equal to minus E. Right, so I think I have Okay. defined all of them. K is the Coulombic constant, CGS में उसका value 1 होता है. So for simplification I will consider K is equal to 1 and do the derivations or calculation whatever it is, right? So from the Yes. first force balancing equation, can I say what I'll do? So 1 R will be cancelled out in the denominator, एक cancel out हो Yes. जाएगा, तो it will be mv square is equal to jd square by r. K मैंने 1 ले लिया. So Hmm. now what we have done, we have multiplied both side with half. Okay. Okay. So what you are getting, half mv square is equal to jd square by 2r. Is it clear? Half mv square Yes, क्या sir. होता है? Electron का kinetic energy and Bohr's orbit. So here I Hmm. have expressed kinetic energy of electron in terms of r. So Ek is equal to z square by r. Is it clear? Yes, sir. Now let us talk about potential energy. So I hope you know what is the potential energy of electron. That should be K into Q1 Q2 by R. Yes. Potential energy क्या होता है? Potential energy is equal to K into Q1 Q2 by R. अब इसमें Q1 Q2 में we have to include the sign. When you जब तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना होता है तो उसमें we have to exclude the sign, we take the mod. But यहाँ पे you have to include the sign और डिनोमिनेटर पे R है instead of R square. Okay. So Okay. Q1 is equal to plus ZE, Q2 is equal to minus E. What is the potential energy of this electron? That is minus Minus. JD square by R. So we have found the kinetic energy and potential energy of the electron in terms of R. Is it clear? Yes, sir. Is this for What? Bohr's orbit or any orbit? In Bohr's orbit only. Okay. This is the kinetic energy and potential energy of electron in Bohr's orbit. Right. And so this is the total energy. That must be the summation of kinetic energy and potential energy. Yes. Right, now if I add them, what are you getting? If I add them, what are you getting? You add these two, you will get minus jd square by 2r. Yes, sir. ठीक है, तो Yes. ये तीनों को काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों को आई हैव एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ r, that is the radius of Bohr's orbit, right?
तो क्या तुम बता सकते हो कि व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ दिस थ्री एनर्जी टर्म्स, काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी? इफ यू लुक एट दिस, One. Hmm. इन तीनों में जेड स्क्वायर बाई आर, ये वाला पार्ट तो सेम है, चेंज क्या हो रहा है? Yes. कोएफिशिएंट, द मल्टीप्लायर इज चेंजिंग। जेड स्क्वायर बाई आर का एक मल्टीप्लायर जो है दैट इज चेंजिंग। तो काइनेटिक Hmm. एनर्जी पे वो मल्टीप्लायर क्या है? हाफ। Yeah. Yes, sir. हाफ यहाँ पे क्या है? Hmm. दैट इज Minus one. माइनस ऑफ वन, और यहाँ पे क्या है? माइनस Minus ऑफ half. हाफ। Yes, sir. ठीक है ना? Yes. तो फिर क्या होगा? तो अगर तुम्हें इसको होल नंबर्स पे लेना है तो क्या होगा? 1:-2:-1, so that is the ratio of these three energy terms, kinetic is to potential. Always. बोर्स ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन का तो यही रेशियो आएगा। Okay. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. चलो, लेट अस डू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू पुट द एक्सप्रेशन ऑफ आर। डिड यू रिमेम्बर हमने आर को इन टर्म्स ऑफ एन एंड जेड एक्सप्रेस किया था हम लोगों ने? Yes, sir. सो I'll replace, what I'll do, I'll replace R with that expression. टोटल एनर्जी पे हम R को उस एक्सप्रेशन से रिप्लेस करेंगे। Are you getting what I'm saying? We replace value of R, I by the we total. have found, we have derived an expression of R in terms of N and Z in the previous class, right? Yes, sir. तो उस एक्सप्रेशन से हम R को रिप्लेस करेंगे in this expression of energy. Okay. I hope it is clear. So what you will get here? So you can see if I replace R with the expression of N and Z, तो फिर ये total energy will be expressed in terms of N and Z. मैंने बस R को replace किया है with that expression, and तो फिर energy का terms क्या आ जाएगा? The derivation part I'll leave up to you, so you can derive this. मैंने बता दिया कैसे derive करना है, right? बस R का expression से Hmm. replace करना है, ठीक है? That is your Okay. job to do. This is the homework. Derive, ठीक है? तो अगर मैं R से रिप्लेस करूं, दिस Yes, sir. विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेम तरीके से मैंने यहाँ पे E का सबस्क्रिप्ट पे N एंड Z डाल दिया, क्योंकि द वैल्यू ऑफ एनर्जी विल आल्सो डिपेंड ऑन द नोन वेरिएबल्स N एंड Z। तो एक्सप्रेशन क्या है? -2π² m e to the power 4/a²। again you can see I have put all the constant values together into z²/n²। ठीक है? तो सारे कांस्टेंट वैल्यू को मैंने एक Yes. साथ डाल दिया, एंड दिस इज द नोन वेरिएबल पार्ट z एंड n, राइट? Yes. तो इफ आई पुट ऑल दिस वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, क्या मिलेगा इसका वैल्यू? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है? तो दैट इज योर Yes, सिंप्लीफाइड sir. एक्सप्रेशन ऑफ, सो ये क्या मिला मुझे? दैट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth Bohr orbit in the atom where the atomic number is Z। Yes, sir. अगर तुम ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से जूल पर एटम पे कन्वर्ट करोगे, यू नो हाउ टू डू दैट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus, राइट, -19 जूल। Yes. उससे मल्टीप्लाई करो, तो जूल पर एटम पे अगर चाहिए तो दिस विल बी योर एक्सप्रेशन। Hmm. क्लियर और नॉट? Yes, sir. चलो सही है। अब एक चीज बताओ, तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन व्हाट कैन यू कंक्लूड? इफ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n, तो ये डिनोमिनेटर पे अगर n इंक्रीज हो रहा है तो ये z²/n² रेशियो ये डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? Decrease. डिक्रीज होगा। अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो इस रेशियो विल डिक्रीज, बट आगे माइनस है, तो टोटल जो एक्सप्रेशन है तो उसका वैल्यू क्या होगा? दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज। ये रेशियो तो डिक्रीज हो रहा है, बट Increase. आगे माइनस होना मतलब क्या है? अगेन टोटल एनर्जी विल इंक्रीज। Yes. तो इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट नंबर इंक्रीज होने से एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होता है। डू यू रिमेम्बर कि बोर्स मॉडल का जो पोस्टुलेट है उसमें भी हम लोगों ने किया था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से जितना बढ़ेगा एनर्जी उतना इंक्रीज होगा। तो दैट कैन बी Yes. आल्सो concluded from the mathematical expression. The greater the value of n, greater will be the
energy value. Is it clear? Greater value of n will be greater energy value. Yes, sir. Right. Now what if n is equal to infinity? अगर n infinity मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो लेट अस कंसीडर द ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर इज इनफाइनाइट. अगर n इनफाइनाइट है तो ये क्या बन जाएगा? जीरो. ये इन्फिनिटी इज जीरो. Hmm. बोल सकता हो कि नहीं? सो तो लेट्स से, तो यहाँ पे देखते हैं. There is a question. What is the significance of negative charge in this expression? यहाँ पे एनर्जी एक्सप्रेशन पे नेगेटिव चार्ज का सिग्निफिकेंस क्या है? तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. तो एक चीज देखो. लेट्स से these are the orbits inside the atom. ठीक है. एंड दिस इज द ऑर्बिट जो एटम के बाहर है, वेयर n इज इक्वल टू इंफिनिटी. ठीक है. डू यू रिमेम्बर आई Okay. टोल्ड यू, अगर n इनफाइनाइट मतलब है ये न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस पे नहीं होगा. न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रिक Hmm. फील्ड है उसके बाहर है, मतलब एटम के बाहर है. तो ये जो इनफाइनाइट Yes, sir. ऑर्बिट हम लोगों ने एज्यूम किया है, दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है. तो अगर यहाँ Yes. पे कोई इलेक्ट्रॉन है, आउटसाइड द एटम कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे न्यूक्लियस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. एंड आई कैन सी द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो, बिकॉज ई इंफिनिटी इज जीरो. Yes, sir. तो दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इस पे न्यूक्लियस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जीरो होता है, विच इज आउटसाइड द एटम. ठीक है. नाउ Okay. लेट्स से, लेट अस ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम. इनसाइड द एटम किसी ऑर्बिट पे लेके आया. सो लेट अस टेक द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द Hmm. एटम इन सम ऑर्बिट. तो इस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन काम करेगा. Yes, sir. तो फिर इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा. Yes. तो अगर इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा? Electron का stability. अगर इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज, व्हेन यू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, तो उसमें Hmm. क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन विल More stable. एक्सपीरियंस द, इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी अब इंक्रीज हो रहा है. बाहर बाहर में उसका जो स्टेबिलिटी था, अंदर में उसका Hmm. स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि उसको अट्रैक्शन मिल रहा है न्यूक्लियस का. Hmm. Yes. तो तो अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगा? लोअरिंग ऑफ एनर्जी होगा, और इट विल इंक्रीज. Decrease. इट विल लोअर और इट विल डिक्रीज. तो अगर बाहर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो है, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए फिर. Yes, sir. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ? What is the significance of this negative charge in the energy expression? It simply means the electron is present inside the atom, or the electron is bound by the nucleus. मतलब electron is present under the influence of nucleus, और nucleus की electric field के अंदर है, मतलब atom के अंदर. Is it clear? Yes, sir. चलो सही है. चलो फिर कुछ, अरे हैव यू रिटन दिस एक्सप्रेशन एटलीस्ट, ये वाला, क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स करना है इसमें. Okay, sir. 1 second. I'll write it. Let me know when you are done. Which expressions do I have to copy? This one मैंने स्टार मार्क करके रखा है, मतलब मैथमेटिकली यही Okay. सबसे काम आएगा. Okay. Yes, I've copied that one. तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन है इन एनर्जी, मैंने ऑलरेडी बता दिया राइट तुम्हें. Hmm. चलो तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं. दिख रहा है? Yes, sir. एक सेकेंड.
तो यहाँ पे देखो मैंने एनर्जी का एक्सप्रेशन विच इज योर वर्किंग फॉर्मूला टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वो भी मैंने लिख दिया है यार. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पे, राइट. तो लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 33. तो 33 कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 33. तो तुम बताओ यहाँ पे थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस, तो यहाँ पे n क्या है एंड z का वैल्यू क्या है? N will be 3 and Z will be 4. राइट. अब रेशियो निकालना है फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस, तो इसमें n क्या है z क्या है? N will be 5, Z will be 3. राइट. So what I can see from this expression So for that the first one, it right. So what we can 3, see that this 4. is proportional to z square, right? ये जो energy है that is So proportional for to the z first one, square. it will be 3, 4. First one it is 3, 4, right? Correct. So this is 3, 4. तो फिर बताओ यहाँ पे can I say that energy of electron is proportional to z square? तो यहाँ पे z कौन है? 4 and 3. Yes, sir. तो ये 4 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, जो ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, क्योंकि प्रोपोर्शनल है स्क्वायर टर्म लेके. ठीक है. एंड इट इज इनवर्सली Yes, sir. प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. तो Reciprocal. तो फिर ये वाला 3 नीचे जाएगा या ऊपर? 5 square. ये 3 स्क्वायर नीचे नीचे. जाएगा और 5 स्क्वायर ऊपर जाएगा, राइट. एंड यू गेट दिस रेशियो. आई होप इट इज क्लियर. Yes. 34 वाला Yes, sir. करते हैं. 34. What does it say? If energy of fourth bohr orbit of lithium 2 plus ion is x. ठीक है. तो यहाँ पे what does it say? Energy of fourth bohr orbit. n का वैल्यू क्या है? 4. और लिथियम 2 प्लस मतलब z का वैल्यू क्या है? 3. 3. This is x, isn't it? And what Yes, sir. about sixth excited state of helium plus? Sixth excited state मतलब 7th shell. 7. So it is 7th orbit and z का वैल्यू क्या है? 2. राइट. तो इसको इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना है. तो इसको मैं y मान सकता हूँ एंड आई हैव टू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है. Yes, sir. तो कैन आई टेक ए रेशियो? तो अब ये रेशियो y बाई x लेना है और x बाई y लेना है. मतलब यू कैन टेक आइदर ऑफ देम, बट विच वन शुड बी इजियर टू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x? y बाई x लेना है और x बाई y लेना है. Y by X. I'll take y by x. So if I take y by x, इसका मतलब तो ये z स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है. तो आई कैन राइट 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. तो ये नीचे वाला n ऊपर जाएगा एंड ऊपर वाला n नीचे आएगा. ठीक है. तो यहाँ से तुम y को एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ. Yes. देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, So sir. far, do you Yes, sir. find this chapter difficult? No, sir. I am able to understand. Can you tell me हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी क्या होना चाहिए? तो हाइड्रोजन एटम मतलब Hydrogen first. राइट. First orbit will be n equal to 1, second n equal to 2, third n equal to 3, and fourth राइट. n और equal to हाइड्रोजन 4. मतलब z का वैल्यू क्या हो गया? 1. Yes. तो यहाँ पे एक्चुअली इट इज wiser to remember the energy of these 4 orbits. The values. Right. The values. जैसे कि U1 क्या होगा? If you put Z is equal, Z तो 1 है हाइड्रोजन एटम के लिए. Right. This is for hydrogen atom. So Z is equal to 1. Is but it important to memorize? It is not important. You can easily derive that. But कभी-कभी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने में आसान होता है. Okay. To increase the speed, you can easily find that out, right? U1 minus 13.6 होगा. E2 क्या होगा? इसका 1/4 times, right? नीचे n square है.
तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा. E3 क्या होगा? -13.6/3 क्योंकि Z तो 1 है. इट विल बी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड E4 बाई 4 स्क्वायर करो तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यू कैन एक्चुअली ये चार वैल्यू यू कैन रिमेम्बर और मेमोराइज. इज इट क्लियर? Yes. Where is it used? हम्म. Where is this used? Will we learn about that later? We'll come to see कहाँ पे यूज होता है. बट Okay. आई एम सेइंग कि यू कैन इजीली डिराइव दैट. बट तुम याद रख सकते हो कुछ कुछ जगह पे. इट विल बी हैंडी. Okay, sir. अच्छा, अगर तुम्हें टोटल एनर्जी मिल गया यूजिंग दिस एक्सप्रेशन तो तुम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हें रेशियो पता है. यस और नो? Yes, sir. Yes. So now we are coming to the problems related to electronic transition. ठीक है, तो इसको समझो, अच्छे से समझो. अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे हो सकता है? आइदर लोअर टू हायर ऑर्बिट और हायर टू लोअर ऑर्बिट. मतलब एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स टू एनर्जी लेवल्स. पता है? Yes, sir. तो लेट से यहाँ पे एनर्जी एक्सेस लिया है हम लोगों ने यहाँ पे, and these are the two energy levels. ठीक है, one is E1, one is E2. Let's say E1 is the lower energy level, E2 is the high energy level. मतलब E2 is greater than E1. तो E1 का जो corresponding Bohr's orbit है, that should be the lower orbit. Let's say N1, and N2 should be the higher orbit. है ना? तो N2 greater Yes, than sir. N1 है, E2 greater than E1 है. अब ट्रांजिशन लोअर टू हायर हो सकता है, हायर टू लोअर हो सकता है. एंड यू नो कि लोअर टू हायर ऑर्बिट मतलब फोटोन विल बी एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, और हायर टू लोअर मतलब फोटोन विल बी रिलीज्ड. ये डायग्राम से पता चल रहा है सारे चीज. Yes, sir. तो क्या होगा? ड्यूरिंग ए फोटोन एब्जॉर्प्शन द फोटोन विल स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन एट लोअर ऑर्बिट. इट विल सप्लाई द एग्जैक्ट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक promotion, right? And the electron will be promoted to the higher orbit. And during the photon emission, the energy of the photon should be the same energy which is required to demote the electron from higher to lower orbit. Is it clear? Yes, sir. We did this part previously. We did this, right? तो let's say ये n1th orbit का जो energy क्या है? Can you just give me 1 minute? N1. Yes, sir. Okay, fine. So n1th orbit का energy क्या है? That should be, if I follow the expression, energy का expression अभी पता है, right? तो n1 orbit का energy क्या होगा? That should be, let's say this is E1. That should be minus 13.6 into Z square by n1 square. है ना? Yes. So E1 is equal to minus 13.6 into Z square by n1 square electron volt per atom. And what will be E2? E2 should be Minus 13.6 into Z square by N2 electron volt per atom. right. तो ट्रांजिशन एनर्जी क्या है? ट्रांजिशन एनर्जी ये दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस. इफ आई एम लुकिंग फॉर द अमाउंट ऑफ ट्रांजिशन एनर्जी तो हायर माइनस लोअर एनर्जी लेवल होना चाहिए डिफरेंस. E2 माइनस E1. अगर तुम ये डिफरेंस Yes, sir. लोगे इट विल कम एज 13.6 into Z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square. इज इट क्लियर? दोनों में माइनस है, दोनों ये दोनों Yes, sir. एनर्जी का एक्सप्रेशन पे माइनस है. दैट इज व्हाई माइनस ऑफ माइनस इज प्लस. n1 पहले आ गया. इज इट क्लियर और नॉट? तुम खुद करके देखो, यही आएगा. सो दैट इज द ट्रांजिशन एनर्जी. ठीक है, अब ट्रांजिशन एनर्जी इज नथिंग बट द Okay. difference of these two energy levels, higher orbit minus lower orbit. And this can be also the energy of the photon associated with the electronic transition, right? तो इस transition में जो wavelength, how do you calculate that? इस transition का wavelength simply this, can I say lambda is equal to 12,400 by Hc energy by of V this photon. बोल सकता हूँ ना? This is for basically, angstrom. we have done the shortcut
12,400 बाई लैम्डा, ये एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ रहा है तो ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो लैम्डा क्या होगा, दिस ट्रांजिशन एनर्जी बाई 12,400, लैम्डा सॉरी लैम्डा क्या होगा 12,400 बाई दिस ट्रांजिशन एनर्जी, राइट। यस सर। तो अगर तुम्हें वेवलेंथ मिल गया तो इस ट्रांजिशन का फ्रीक्वेंसी भी मिल गया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, बट यहाँ पे लैम्डा मीटर पे लेना है, यहाँ पे तुम एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट कर रहे हो बट उसको मीटर पे कन्वर्ट कर लेना है व्हाइल फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट होता है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, उससे तुम वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। सो दीज आर योर वर्किंग फॉर्मूलाज। तो एक ट्रांजिशन के लिए तुम्हें क्या जानना जरूरी है, यू नीड टू नो द लोअर ऑर्बिट नंबर, यू नीड टू नो द हायर ऑर्बिट नंबर, ठीक है। ओके नो लोअर ऑर्बिट नंबर, हायर ऑर्बिट नंबर एंड जेड पता करना है फ्रॉम द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दिस डेटा, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, राइट। यस सर। तो चलो लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस। ये वाला प्रॉब्लम कैन यू टेल मी कैसे करना है। ओके Calculate energy required to promote the electron of lithium 2 plus। तो lithium 2 plus मतलब Z का वैल्यू क्या हुआ, जेड का वैल्यू 3। राइट। तो Z इज इक्वल टू 3। ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एन एक्साइटेड स्टेट, तो N1 का वैल्यू क्या हुआ, N2 का वैल्यू क्या हुआ, N1 equal to 1 and N2 equal to 4. N2 इज इक्वल टू 4। तो यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू नीड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन अभी ये N1 इज इक्वल टू 1 है, N2 इज इक्वल टू 4 है, यू हैव टू प्रोमोट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 टू 4। तो उसके लिए क्या निकालना है तुम्हें, वेवलेंथ एंड, अच्छा पहले एनर्जी निकालना है। तो दिस इज नथिंग बट द ट्रांजिशन एनर्जी, राइट। Yes sir. दिस इज नथिंग बट द ट्रांजिशन एनर्जी। तो ट्रांजिशन एनर्जी क्या होगा, फॉर्मूला पता है, 13.6 इंटू जेड Yes sir. स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकाल लोगे, सब कुछ पता है, N1 N2 Z सब कुछ पता है, निकल जाएगा। Yes sir. और फिर लैम्डा निकाल पाओगे, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी भी निकालना है। तो लैम्डा क्या है, लैम्डा इज 12,400, वी आर यूजिंग द शॉर्टकट फ्रॉम द बिगिनिंग, बाय दिस ट्रांजिशन एनर्जी व्हिच इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है ना। तो Yes. ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है Yes sir. तो ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। और फिर फ्रीक्वेंसी भी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, सी बाई लैम्डा। अब यहाँ पे लैम्डा मीटर पे लेना है, सी का वैल्यू तुम्हें पता है, तो ये हर्ट्ज पे आएगा। कर लोगे, सो वी आर जी. नॉट डूइंग द Yes. Yes sir. कैलकुलेशन बिकॉज चलो। तो ट्रांजिशन एनर्जी, ट्रांजिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफी होता है, ठीक है, इन दिस चैप्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना इंपॉर्टेंट। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ओके। तो ये हाइड्रोजन एटम, उसका जो एनर्जी लेवल है उसको स्टडी करते हैं। लेट अस टेक हाइड्रोजन एटम। So let's say this is the energy axis. So what is the energy of first orbit of hydrogen atom? We already know, minus 13.6 electron volt. Second orbit का energy क्या होगा, Yes. minus 3.4. Minus Third, 3.4. third energy level minus 1.51. Fourth minus 0.85. Now if you study it properly, you will see कि as the value of n increases, मतलब orbit number increase हो रहा है,
So the difference between two successive energy level is continuously decreasing. दो successive energy Can you levels please के बीच, repeat the statement? as the energy level is increasing or the n value is increasing, the energy difference daily between two successive energy levels are continuously decreasing. For example, ये 1 Yes, and sir. 2, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? 2 and 3 के बीच Yes. डिफरेंस क्या है? What is the difference between 2 and 3? So if you look at this, this is 6.8. 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन दोनों के बीच. 3.4, 1.51 का डिफरेंस क्या है? 1.9. ठीक है, अगर तुम इन दोनों के बीच डिफरेंस देखोगे बिटवीन 3 and 4, दिस इज 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो as the in value increases, the energy difference between two successive energy level is decreasing. Is it clear or not? Yes, sir. चलो, तो can I say when n tends to infinity, right? When n tends to infinity, तो फिर डेल्टा E tends to 0 हो जाएगा. Yes. n infinity पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 होता है, बट मतलब इस लेवल पे सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच जो डिफरेंस वो 0 हो जाएगा. दैट मीन्स यू कैन नॉट सेपरेट the energy levels from each other, right? So this will be a continuous energy levels. Do you agree or not? Continuous, the ones outside of the nucleus ring. Outside the atom. So this is continuous energy levels. आउटसाइड एटम इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 होता है, तो यहाँ Okay. पे विल गेट कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स. मतलब यू कैन नॉट सेपरेट देम बाय एनर्जी, यू कैन नॉट सेपरेट देम. तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, एटम के बाहर जो इलेक्ट्रॉन वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि वी हैव कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स विदाउट एनी डिफरेंस, है ना? तो फ्री इलेक्ट्रॉन हैज कंटिन्यूअस एनर्जी एक्सचेंज, जबकि एटम के अंदर जब एनर्जी एक्सचेंज होता है वो डिस्क्रीट वैल्यूज में होता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लेवल्स के बीच गैप है. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ये कंसेप्ट समझ में आया? Yes, sir. चलो, so which chapter you find more interesting, this chapter or mole concept? This chapter has more information. More information or more theory or concept? Concepts. राइट, तो यहाँ पे बहुत सारे नया कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है. मोल कंसेप्ट इज मोर लाइक न्यूमेरिकल्स, राइट? उसमें ज्यादातर मैथ्स से कंसेप्चुअली कुछ यूनिक नहीं है, राइट? दोस आर वेरी सिंपल कंसेप्ट्स इन मोल कंसेप्ट. अच्छा, तो यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ, हाउ टू कंपेयर ट्रांजिशन एनर्जी फॉर टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. लेट्स से तुमको दो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिया गया है, ठीक है, एंड दे आस्क यू टू कंपेयर the transition energy, or they can ask you to compare the wavelength or frequency of the transition. तो उसको कैसे करना है? So please try to understand. तो let me give you two transitions. एक is 2 to 1 ये वाला transition, and another is infinity to 2, this one. दिख रहा है कि नहीं? One was So let me infinity mark. to 2, One other is one is 2 to 1. हाँ 2 to 1 मतलब ये वाला, and this infinity to 2. तो can you tell me इन दोनों में किस में ट्रांजिशन एनर्जी ज्यादा है? इन व्हिच ट्रांजिशन मोर एनर्जी इज एसोसिएटेड? 2 to 1. 2 to 1. उसमें डिफरेंस क्या है? 10.2. तो ट्रांजिशन एनर्जी इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इंफिनिटी टू 2, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? Yes. तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ट्रांजिशन पे n1 क्या है? 1, n2 क्या है? 2. इन द सेकेंड ट्रांजिशन विच वी आर कंपेयरिंग, n1 का वैल्यू है 2, n2 का वैल्यू है इंफिनिटी, राइट? है ना? Yes. एक ये वाला ट्रांजिशन जहाँ पे n1 वैल्यू इज 1 एंड द अदर ट्रांजिशन जहाँ पे n1 का वैल्यू इज 2. नाउ यू सी n2 का वैल्यू इसमें इंफिनिटी है, बट स्टिल ट्रांजिशन एनर्जी
इसमें ज्यादा है. So can I say that transition energy is dominated by the valve? Transition energy will be decided preferentially by the lower orbit. Can I say that? Transition Yes. energy किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, that will be preferentially guided by lower orbit. And what do I see? Lower orbit का वैल्यू जिस ट्रांजिशन में कम होगा उसका ट्रांजिशन एनर्जी ज्यादा होगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. दैट मीन्स द ट्रांजिशन एनर्जी is inversely proportional to the lower orbit number. Reciprocal relation है, right? Transitional energy is directly Simple. proportional to lower, right? नहीं, इनवर्सली. n1 का वैल्यू जब 1 है तब ट्रांजिशन एनर्जी ज्यादा है, नो मैटर n2 का वैल्यू कुछ भी हो. Hmm. यहाँ पे n1 का वैल्यू 1 है, यहाँ पे n1 का वैल्यू 2 है, बट ट्रांजिशन एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है. तो जिस ट्रांजिशन में n1 Hmm. का वैल्यू कम है वहां पे ट्रांजिशन एनर्जी ज्यादा हुआ. Yes. Okay. तो इसका मतलब क्या हुआ? लोअर द n1 वैल्यू ग्रेटर विल बी द ट्रांजिशन एनर्जी. सो देयर आर रेसिप्रोकल, देयर इज अ रेसिप्रोकल रिलेशन. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो यू कैन सी. Yes, sir. सो सो जब जब तुम्हें दो ट्रांजिशन को कंपेयर करना है तो योर फर्स्ट चेक पॉइंट शुड बी n1 वैल्यू. दैट इज योर फर्स्ट चेक पॉइंट. एंड यू कैन सी द ट्रांजिशन एनर्जी इज हैविंग ए रेसिप्रोकल रिलेशन विद n1. n1 का वैल्यू जितना कम होगा ट्रांजिशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा, राइट? सो दैट इज योर मेन रिलेशन. अगर ट्रांजिशन एनर्जी पता चल जाएगा तो फिर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ भी पता चल जाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन एनर्जी के साथ फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? Hmm. इज इट क्लियर और नॉट? तुम्हें बस ट्रांजिशन एनर्जी Yes, के sir. साथ रिलेशन देखना है, बिकॉज ट्रांजिशन एनर्जी के साथ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ तुम्हें पता है कैसे रिलेशन मिलता है. जैसे वेवलेंथ इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांजिशन एनर्जी, राइट? Yes. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, ट्रांजिशन एनर्जी अगर मैक्सिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, लैम्डा मिनिमम होगा. और ट्रांजिशन एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, लैम्डा मैक्स है. ठीक है. तो तो बेसिकली आई विल चेक द रिलेशन बिटवीन ट्रांजिशन एनर्जी एंड n1. n1 के साथ ट्रांजिशन एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड है. एंड n1 शुड बी योर फर्स्ट चेक पॉइंट. पहले n2 नहीं देखना है. फर्स्ट चेक पॉइंट इज n1. n1 पे डिसाइड हो जाएगा. अगर नहीं होता है डिसाइड तो फिर n2 पे जाएंगे, मतलब हायर ऑर्बिट देखेंगे. ठीक है. Okay. तो एक चीज देखो यहाँ पे, अगर लेट अस टेक टू ट्रांजिशंस, वन इज 2 to 1, another is 3 to 1, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन एंड दिस वन. तो कैन आई से इन दोनों में n1 का वैल्यू तो सेम हो गया, राइट? इन दोनों में क्या होगा? Okay. n1 का वैल्यू Yes. सेम है. तो नाउ द चेक पॉइंट विल बी n2. जैसे ये 2 to 1 है एंड दिस इज 3 to 1, दिस वन. तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ट्रांजिशन एनर्जी कहाँ पे ज्यादा है? 2 to 1 एंड 3 to 1 Uh, कहाँ पे ट्रांजिशन एनर्जी ज्यादा है? 3 to 1. 3 to 1 पे. तो अगर n1 सेम हो गया, आई हैव टू चेक n2. दैट इज माय सेकंड चेक पॉइंट. Hmm. इफ n1 cannot be the Yes, sir. deciding one, then I will check n2. और n2 का वैल्यू जितना ज्यादा होगा ट्रांजिशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा. इज इट क्लियर? Yes. So first checkpoint is always n1. If that cannot decide, second checkpoint. I'm repeating again and again. By now you should register this in your head. ठीक है. अगर ट्रांजिशन एनर्जी मिल गया Yes. तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी भी आई कैन कनेक्ट, है ना? Yes. So let us do some problems. बताओ.
क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या करना है तुम्हें, ट्रांजिशन एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम है वो निकालना है. तो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. 4 ट्रांजिशन दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द कि कौन सा ट्रांजिशन पे ट्रांजिशन एनर्जी इज मैक्सिमम. बताओ क्या 2 चेक to करना है 5. पहले, N1 वैल्यू और N2 वैल्यू. N1. N1 N1 जितना कम होगा ट्रांजिशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा. तो उस हिसाब से इन दोनों Hmm. में N1 का वैल्यू मिनिमम है, राइट. तो Yes. तो फिर इन दोनों में N1 सेम हो गया. अब क्या चेक करना पड़ेगा, N2. N2 वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसको. दिस शुड बी योर ऑप्शन. Yes, sir. दूसरे वाले में बताओ. 3 to 5. 3 to 5, क्योंकि यहाँ पे N1 का वैल्यू सबसे कम है. एंड तीसरे वाले में, Hmm. 1 to infinity. राइट. तो समझ में आ गया कैसे करना है. Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ट्रांजिशन में किसमें ट्रांजिशन का वेवलेंथ मैक्सिमम है. तो वेवलेंथ मैक्सिमम होने का मतलब ट्रांजिशन एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम. Minimum. मिनिमम. तो मिनिमम ट्रांजिशन एनर्जी के लिए N1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम. Maximum. मैक्सिमम. तो दैट इज व्हाट यू विल बी लुकिंग फॉर. तो बताओ पहले वाले में Hmm. N1 का Maximum मैक्सिमम for वैल्यू कहाँ पे 6 है. to 7. नहीं, 6 पे है, राइट. ये 6 हो गया. अब N1 इन दोनों में 6 है, तो इन दोनों में कैसे डिसाइड करेगा, N2 देखना पड़ेगा, N2 मिनिमम होना N2 पड़ेगा, lower. राइट. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक, राइट. सेकंड वाला 2 to 7, 1 to infinity, Yes. 3 to 10 एंड 4 to 12 क्या होना चाहिए, लास्ट वन, राइट. 4 to 12. राइट. सो आई होप इट इज क्लियर. Yes. Yes, sir. चलो. Now let us understand different types of transition energy. Right? There will be different types of terminology which will be used. The first is ionization energy. ठीक है. Is तो that the same ionization as transition energy or different? सॉरी, देखो different types of transition Are energy. these Ionization okay? energy, excitation energy, separation energy, these are different terminology used to define different types of electronic transition, right. So now you have to understand that Okay, कि sir. किसका मतलब क्या है. तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जब तुम इलेक्ट्रॉन को उसका ग्राउंड स्टेट से नॉकआउट करते हो एटॉम के बाहर, ग्राउंड स्टेट से एटॉम के बाहर. तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ पे हो रहा है, कहना इसे N1 का वैल्यू 1, N2 का वैल्यू इंफिनिटी. Yes. दैट इज व्हाट यू हैव टू फिगर आउट कि व्हाट इज N1 वैल्यू, व्हाट इज N2 वैल्यू. बिकॉज ये दोनों मिल गया तो यू कैन इजीली फाइंड द ट्रांजिशन एनर्जी. ट्रांजिशन एनर्जी का वर्किंग फॉर्मूला मेरे पास क्या है, दिस वन, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n² माइनस 1/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो बस N1 N2 ही तो निकालना है, हर एक के लिए N1 N2 फिगर आउट करना है. जेड तो एटम से पता चल जाएगा. तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब तुम्हें Yes. इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू आउटसाइड द एटम. तो यहाँ पे N1 1 एंड N2 इंफिनिटी. ठीक है. तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब, Transition energy will always. ट्रांजिशन एनर्जी So मतलब, will transition energy will it always be negative or positive? नहीं ये तो पॉजिटिव है ना. ट्रांजिशन एनर्जी Okay. पॉजिटिव, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू, हायर माइनस लोअर लेते हैं ना, डिफरेंस. Hmm. तो यहाँ पे क्या, तो फिर इट शुड बी E इंफिनिटी माइनस E1, राइट, हायर माइनस लोअर. Yes. तो E इंफिनिटी क्या होता है, जीरो हो जाता है. Yes. तो दिस इज नथिंग बट माइनस Yes, ऑफ sir. E1. तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है किसी एटॉम पे, उसका नेगेटिव ले लो, यू विल गेट द आई. और अगर मैं यहाँ पे N1 N2 का वैल्यू पुट करूंगा, N1 शुड बी 1, N2 शुड बी इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, इट शुड बी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, है ना.
तो Yes. I is क्या 13.6 into z Yes. square in electron volt, which is nothing but the negative of E1. Is it clear? Yes, sir. तो you are basically 1 से इंफिनिटी तक इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करने के लिए और ट्रांजिट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है दैट इज आई, आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक्साइटेशन एनर्जी. तो एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या होता है? तुम इलेक्ट्रॉन को जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे ट्रांजिट कराते हो, तो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, राइट? Yes. तो ग्राउंड स्टेट मतलब क्या है? N1 का वैल्यू 1, दैट इज अ लोअर 1. एनर्जी लेवल. और एक्साइटेड स्टेट मतलब N2 का वैल्यू 1 से N ज्यादा होगा. N+1. N प्लस 1 नहीं, 1 से ज्यादा होगा. 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, राइट? 1 से ऊपर जो भी एनर्जी Okay. लेवल होता है इलेक्ट्रॉन का, ऑल ऑफ देम आर एक्साइटेड स्टेट. तो N2 का वैल्यू लेट अस एज्यूम N व्हिच इज ग्रेटर देन 1. ठीक है. Yes. तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो एक्साइटेशन एनर्जी इज बेसिकली En माइनस E1, यही करेंगे, राइट? और यहाँ पे N1 इज इक्वल टू 1, N2 इज इक्वल टू N प्लेस करो, तो क्या आएगा? दिस वन. दैट इज हाउ यू फाइंड Yes, sir. एक्साइटेशन एनर्जी. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखो, ये ग्राउंड Yes, स्टेट sir. है, दिस इज ग्राउंड स्टेट. कैन आई से N इज इक्वल टू 2 इज फास्ट एक्साइटेड स्टेट? बोल सकता Yes. हूँ. N इज इक्वल टू 2, FES Yes. मतलब फास्ट एक्साइटेड स्टेट. तो ग्राउंड स्टेट से फास्ट एक्साइटेड स्टेट तक ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन में जितना एनर्जी लगेगा दैट कैन बी कॉल्ड फास्ट एक्साइटेशन एनर्जी. सो FEE मींस fast excitation energy. Is it clear or not? What does it mean though? Like, what is first excited energy? मतलब ग्राउंड स्टेट से तुम इलेक्ट्रॉन को फास्ट एक्साइटेड स्टेट पे एक्साइट करने में जो एनर्जी लगेगा. Okay. फास्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब N is equal to 2, राइट? तो यहाँ Yes. पे N1 1 हो गया, N2 2 हो जाएगा इन दिस केस. अगर मैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे एक्साइट करूंगा ग्राउंड स्टेट से, मतलब N is equal to 3 पे, तो दिस विल बी कॉल्ड सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी. इज इट क्लियर Yes. और नॉट? Yes. क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट टर्म इज सेपरेशन एनर्जी और इट कैन बी आल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है. इसमें क्या होता है देखो, वी हैव ऑलरेडी डन ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी, वी हैव ऑलरेडी डन ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. व्हाट इज रिमेनिंग? एक्साइटेड स्टेट टू इंफिनिटी, राइट? तो जब तुम Yes. इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट से नॉकआउट करते हो आउटसाइड द एटम, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होता है दैट विल बी कॉल्ड सेपरेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी. तो इसमें तो फिर N2 इज इंफिनिटी, Yes. N2 इंफिनिटी है, और N1 शुड बी N. Yes. कोई एक्साइटेड स्टेट होगा जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, isn't it? Hmm. N1 Yes, sir. must be N which is greater than 1. तो सेपरेशन एनर्जी क्या होगा? इट शुड बी E infinity minus En, हायर माइनस लोअर एनर्जी. तो E infinity 0 Yes. पता है हमें. सो सेपरेशन एनर्जी क्या Yes, होगा? sir. माइनस ऑफ En. दिस Yes. इज माइनस ऑफ En, राइट? विच इज 13.6 into z square by n square. यहाँ पे प्लेस करो. Yes, sir. N1 की जगह N प्लेस करो, N2 इज इंफिनिटी. तो क्या आएगा? 13.6 into z square by n square. तो हर एक ट्रांजिशन में Or यही we can करना है. directly N1, write it. हाँ. सो यू हैव टू फिगर आउट N1 एंड N2 वैल्यू, तो फिर इजीली हो जाएगा. मतलब ये जानना जरूरी होता है Okay. कहाँ से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है. ठीक है. And what is it denoted by? BE or SE? AC सेपरेशन एनर्जी. Okay. मतलब सेपरेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी दे विल बी गिवन. मतलब पूरा फॉर्म दिया रहेगा. मैं तो Okay. यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म किया हो. And what is SSE? सॉरी, SSE. सेकेंड AC सेकेंड सेपरेशन एनर्जी. What do you mean Okay. by second separation energy और fast separation energy? Let's say इलेक्ट्रॉन को अगर तुम फास्ट एक्साइटेड स्टेट से इंफिनिटी तक भेजते हो, तो दिस विल बी कॉल्ड फास्ट सेपरेशन एनर्जी, क्योंकि फास्ट एक्साइटेड स्टेट से जा रहा है. अगर तुम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से इंफिनिटी तक So भेज N रहे हो, equal to 2 to infinity.
नो, n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे सेकंड सेपरेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट से अगर इन्फिनिटी तक For भेज रहे the हो, first सेकंड one. फॉर द फर्स्ट वन इट इज 2 टू इन्फिनिटी, राइट? Yes. तो चलो फिर कुछ प्रॉब्लम करते। तो और एक चीज होता है, जैसे ये एनर्जी वाला टर्म होता है, सिमिलरली क्या होता है, पोटेंशियल भी होता है। आयनाइजेशन एनर्जी जैसे बोलते हैं, सिमिलरली वी कॉल, ठीक है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी होता है, सिमिलरली समटाइम्स क्वेश्चंस में आयनाइजेशन पोटेंशियल ये टर्म भी यूज होगा, राइट? व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? दिस इज, व्हाट इज दिस? तो आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल कुछ भी हो, n1 एंड n2 वैल्यू तो सेम है। मतलब तुम इलेक्ट्रॉन को 1 से इंफिनिटी तक ट्रांजिट कर रहे हो, राइट? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? दैट इज द Yes. एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस यू हैव टू अप्लाई ऑन द इलेक्ट्रॉन सो दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स टू इंफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन को 1 से इंफिनिटी तक भेजने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होता है, तुम्हें पता है ना, किसी चार्ज पे अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिलता है ना? तो Yes, sir. तुम्हें इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है सो दैट इट गेट्स सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू रीच टू इंफिनिटी। तो वो एनर्जी क्या चाहिए? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस और नो? तो अगर लेट्स से यहाँ पे आयनाइजेशन Yes. एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को n1 से इंफिनिटी तक भेजने के लिए यू हैव टू अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस, जो जिससे इसको ये काइनेटिक एनर्जी मिले सो दैट इट कैन रीच टू दिस लेवल। इज इट क्लियर और नॉट? Hmm. तो तुम्हें क्या है, किसी So we have इलेक्ट्रॉन to पे apply अगर, potential हाँ, difference. तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? अगर किसी चार्ज पे तुम v पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो उसको क्या काइनेटिक एनर्जी मिलता है? q इंटू वी, यही तो मिलता Yes. है ना? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज 1e Hmm. एंड यू हैव अप्लाइड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिला? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब कितना वोल्टेज अप्लाई करना होगा? 13.6 वोल्ट, यस और नो? Okay. So energy equal to तो charge किसी, into voltage. हाँ, तो किसी भी ट्रांजिशन एनर्जी में और ट्रांजिशन पोटेंशियल में मैग्नीट्यूड सेम होता है, डिफरेंस होता है यूनिट पे, ठीक है? मतलब किसी So भी charge is ट्रांजिशन में जो always एनर्जी one, right? रिक्वायर्ड होता है, दैट इज सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन। बस दोनों का यूनिट डिफरेंस होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक होता है ओनली वोल्ट। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो, क्या तुम जल्दी से ये वाला कर पाओगे? अच्छा, जस्ट टेल मी, ये क्वेश्चन से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है तुम्हें? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन यू फास्ट, दिस इज फास्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन लाइक सैंपल? दैट मीन्स सिंपली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो, बोर्स मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल ऑन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। मतलब हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहीं पे होगा तो बोर्स मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल। दैट इज व्हाई दे हैव सेड हाइड्रोजन लाइक सैंपल, मतलब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो फास्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल इज 15 वोल्ट। उसका आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सो हाउ डू वी डू दैट? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ट्रांजिशन एनर्जी लेके एक्सप्रेशन बनाना है यहाँ पे पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल से तो एक्सप्रेशन नहीं Hmm. होगा, ठीक है? बट व्हाट वी नो कि अगर फास्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल 15 वोल्ट है तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा? डिफरेंस क्या है दोनों में? मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है,
अगर पोटेंशियल वोल्ट पे होगा तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस, राइट? तो फास्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब N1 क्या है एंड N2 क्या है? एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या है? तुम ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट पे भेज रहे हो, तो N1 इज इक्वल टू 1, यस यस और नो? और फास्ट एक्साइटेशन एनर्जी यस मतलब तुम ग्राउंड स्टेट से फास्ट एक्साइटेड स्टेट पे भेज रहे हो, तो N2 क्या होगा यहाँ पे? 2, यस और नो? बट वेयर डज इट स्पेसिफाई सेकंड? आई एम सेइंग फास्ट एक्साइटेशन एनर्जी तो मतलब पता होना चाहिए ना N1 N2 क्या होता है, तो मैंने वो फिगर आउट तो किया। ओके ये तो मिल गया मुझे, राइट? तो यहाँ पे N1 इज इक्वल टू 1, N2 इज इक्वल टू 2, तो इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे? 15। यस कैन आई से ये 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये तो मिला था ना? राइट, तो यहाँ पे आई इंटू यहाँ पे क्या, 1 - 1/4, 3/4, तो मिल गया ना? आई इज इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो समझ में आया कि नहीं? IE is equal to 13.6 into Z square. I understood after that. After that, I did not. डू यू गेट इट और नॉट? Okay, into 3. Yes, sir. Yes, sir. तो लेट अस टॉक अबाउट, यू हैव टू फाइंड सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, बट डायरेक्टली तो वो फॉर्मूला पोटेंशियल का नहीं होता है, मुझे सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब N1 So, क्या है एंड N2 क्या है, बताओ? 1. N1 1 है, N2 N1 is 1 and N2 3. N2 3, तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है। तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर विच इज नथिंग बट 20, वी हैव ऑलरेडी फाउंड। 1/1 स्क्वायर Yes. माइनस 1/3 स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मिलेगा। और तो फिर सेकेंड But एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा? सेम sir, मैग्नीट्यूड। it's at negative, right? कौन नेगेटिव होगा? व्हाट इज नेगेटिव? In that ionization, isn't आयनाइजेशन in the एनर्जी का formula, isn't it एक्सप्रेशन क्या है? given negative? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। अब देखो, फास्ट और ये फास्ट ऑर्बिट का एनर्जी नेगेटिव होता है, अब माइनस ऑफ नेगेटिव तो पॉजिटिव ही होगा ना? बोर्स ऑर्बिट का Okay. एनर्जी नेगेटिव में होता है, अब माइनस ऑफ नेगेटिव तो पॉजिटिव ही होगा। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, it's just that the FEP and SCP, if you give the full form, it will be easier to understand. मैंने बता दिया यहाँ पे पहले बार, एसीई मतलब सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, एसीपी मतलब सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है? लिख देता हूं। तो दिस इज सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, तो फिर एसीपी क्या होगा? सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। इज Okay. इट क्लियर और नॉट? तो अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आया तो Yes, ये sir. सिंपल वोल्ट पे आएगा। Hmm. I think this will be your last problem for today. So what does the question say? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या होता है? सेपरेशन एनर्जी, ठीक है? हाइड्रोजन लाइक सिस्टम मतलब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है? ऑफ एसीएम, एस मतलब क्या है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, राइट? इज गिवन बाय 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? तो सेपरेशन एनर्जी मतलब तुम इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां पे भेज रहे हो? N1 क्या है? सेकेंड
सेपरेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. इन जनरल सेपरेशन N1 एनर्जी equal मतलब to क्या होता है? N1 should be 2 and N2 should नो, be N1 4. should not be 2. N1 कैसे 2 होगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब तो N1 3 हुआ ना. Oh, okay. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का सेपरेशन एनर्जी 13.5 है, मतलब N1 3 है. व्हाट डू मीन बाय सेपरेशन एनर्जी? इसका मतलब तुम इलेक्ट्रॉन को कोई एक्साइटेड स्टेट से इंफिनिटी पे भेज रहे हो, राइट? तो N1 अगर 3 है, यहाँ पे N2 मस्ट बी इंफिनिटी, राइट? यस और नो? Yes. तो 13.5 is equal to 13.6 into z square into 1/3 square. 1 by infinity तो 0 हो जाता है. ट्रू. अब तुम्हें पहला क्वेश्चन ये है कि True. आइडेंटिफाई द सैंपल. अब Yes, आइडेंटिफाई sir. द सैंपल का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड z. ये कौन सा वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. तो यहाँ से z मिल जाएगा. इन दोनों को तो हम अप्रोक्सीमेटली 1 मान सकते. तो यहाँ से z स्क्वायर मिल जाएगा. z स्क्वायर इज इक्वल टू ये 13.5 by 13.6 इज 1 into 3 स्क्वायर, मतलब z इज इक्वल टू 3. अब 3 किसका एटॉमिक नंबर होता है? 3 किसका एटॉमिक नंबर होता है? 1 into 3 square. हाँ, नीचे 3 है ना. ये 13 point by 13.6 अप्रोक्सीमेटली 1 लिखा है. Lithium. तो लिथियम बोलने से यहाँ पे नहीं होगा. लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, वो सही Lithium है. ion. बट 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब लिथियम 2 प्लस बोलना पड़ेगा. तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम Okay. कौन है? लिथियम 2 प्लस. दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट आई ऑफ द सैंपल, राइट? मतलब आई क्या है? 13.6 into z square. You have already found z, तो मिल जाएगा. हो जाएगा कि नहीं? Yes. हो जाएगा. थर्ड क्या है? Yes, sir. तुम्हें एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू कॉज ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट. तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड मतलब ट्रांजिशन एनर्जी निकालना पड़ेगा. दैट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन. तो यहाँ पे N1 क्या है एंड N2 क्या है? N1 equal to 2 and N2 equal to 4. तो 13.6 into z square. Z you know. N1 is 2 and this is Yes. 4 square. मिल जाएगा. Yes, sir. और फोर्थ वाला क्या है? wavelength of emitted photon when electron falls from first excited state to ground state. तो यहाँ पे क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालना है. तो हमें पता है कि पहले ट्रांजिशन एनर्जी और फोटोन का एनर्जी क्या है, दैट इज 12,400 बाय लैम्डा. ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में मिलेगा क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मिल रहा है. तो यहाँ पे N1 क्या है एंड N2 क्या है? N1 क्या है एंड N2 क्या है? फॉर द लास्ट क्वेश्चन We can substitute values. Oh, for the N1 last का value question, N1 will be equal to N1 equal to 1 and N2 equal to 2. राइट. सो इट शुड बी 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 2 स्क्वायर. तो यहाँ से तुम लैम्डा निकाल लोगे. यस और नो? Yes, sir. तो हो गया. Yes. आई थिंक वी विल फिनिश इट हियर. Yes. Okay, sir. कोई डाउट, मतलब कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अभी तक? No, sir.